देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1 ଖୁସି ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସକୁ 4 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ 1 କିଲୋ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଗହମ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବାର ଚାଉଳର 20% ଗହମ ମିଳିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମିଳୁଥିବା ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଗହମ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲେ ସଂସଦର ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସଂସଦର ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ଲୋକସଭାରୁ 15 ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 7 ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ନମ୍ବର 3 ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 4 ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ରବିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନୂଆ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବେ। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 19 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। 2 ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାର ବିସ୍ତାରିତ ଆକଳନରେ କହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 22ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଏହି ଆକଳନରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6 ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ, ବୟକଟ କଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଠଶାଳା। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିବ ଏହି 2 ଦିନିଆ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 17ତମ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର 84 ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କିପରି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିପରି ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 7 କଟକରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୈଠକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ବାରଣ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସାରଳା ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ଥର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, 22 ଓ 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ରବିବାରରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। କୌଣସି ଭାବରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କେବଳ 65 ଡେସିମଲ ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡିଜେ ବାଜିପାରିବ। ଅଧିକ ଜୋରରେ ବଜେଇଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ନମ୍ବର 8 ହୋଟେଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆଇଭିଏଫ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଉପରେ ସିବିଡିଟିର ନଜର।
प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नजर एवं होटेल हॉस्पिटल और आईवीएफ क्लिनिक उपरे पड़ी। एथिलागि आयकर विभाग को होटेल लग्जरी ब्रांडर बिक्री हॉस्पिटल एवं आईवीएफ क्लिनिक भली क्षेत्र में बड़ धरणर नगद लेनदेन जांच लगी निर्देश देइछंती। एही जांच अଯଥା हस्तक्षेप बिना करिबा पई सीबीडीटी कहिछंती। सीबीडीटी को संदेह बड़ लेनदेनर रिपोर्टिंग हेउनाही एणु टैक्स चोरी हेउछि। नंबर 9 ग्राहम स्टेन्स हत्या मामला मुक्ति पाई सुप्रीमकोर्ट रे दारा सिंह आवेदन। बहुचर्चित ग्राहम स्टेन्स हत्या मामलें आजीवन दंडादेश काटुवा दारा सिंह मुक्ति पाई आरंभ करिसेंती शेष प्रयास। जेल रु मुक्ति पाई सुप्रीमकोर्ट रे एक मर्सी पिटिशन दाखल करिसेंती दारा सिंह ओरफ रविंद्र कुमार पाल। एथिसह राष्ट्रपति निकट में भी दया आवेदन करा जायछि। मर्सी पिटिशन पाई सुप्रीमकोर्ट निजे द्वारस्थ होइछंती निजे दारा सिंह। एही मामला रे राज्य सरकार को नोटिस करिसेंती सुप्रीमकोर्ट। राज्य सरकार को नोटिस करी मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 27 तारीख को धार्य करिसेंती अदालत। नंबर 10 सिम बॉक्स जबत घटना मास्टरमाइंड बांग्लादेशी चाइना और पाकिस्तान को होउतला कॉल। भुवनेश्वर सिम बॉक्स जबत घटना रे रही इंटरनेशनल लिंक। यही सिम बॉक्स जरिए पाकिस्तान चीन और मध्यप्राच्य देश को कॉल करा जाउथिला। साइबर फ्रॉड आतंकवादी और अन्य अपराध पई एहाको व्यवहार करा जाउथिला। काली गणमाध्यम सम्मुख में एपरी सांघातिक खुलासा करिसेंती भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर संजीव पंडा। यह एक सांघातिक घटना होइथिबा बेले एथिरे गतकाली पश्चिमबंगर राजू मंडल को गिरफ्त करा जायछि। मात्र एही पूरा मामलार मास्टरमाइंड हेउछि बांग्लादेशी नागरिक असादुर जमान। नंबर 11 मोदी रूस जाइथिले एबे अमेरिका जिबे राजनाथ सिंह। चलित मासरे अमेरिका जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुई देश मध्य हेबाकु थिबा उच्चस्तरीय बैठक में श्री सिंह जोग देबे। निकटरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गस्त करथिले। याकु नै अमेरिका परीक्षा रे निजर असंतोष प्रकाश करिथिला। सेहिपरि कूटनीतिक संपर्क रे भी भट्टा सृष्टि होइथिला। एबे किंतु प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका गस्त करी से सबु द्वंद्व को दूर करिवे। से अमेरिका सह द्विपाक्षिक प्रतिरक्षा चुक्ति और इंडो पैसिफिक रे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने उपरे आलोचना करिवे। अमेरिकार प्रतिरक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन सह राजनाथ अगस्त 23 रे द्विपाक्षिक बैठक करिवे बोली मध्ये जणा पड़िछि। नंबर 12 हॉस्पिटल रे एयरपोर्ट भड़ी सुरक्षा पई प्रधानमंत्री को आईएमए रो चिठी। कोलकाता डाक्तरों को दुष्कर्म पर हत्या घटना को नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बा आईएमए पूरा देश में विक्षोभ करुछि। एबे आईएमए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना रे हस्तक्षेप करने को विनम्र अनुरोध करिछि। एथिसह सबु हॉस्पिटल रो सुरक्षा प्रोटोकॉल विमानबंदर भड़ी करने को दाबी करिछि। हॉस्पिटल को सेफ जोन भाव घोषणा करने को आईएमए चिठी रे अनुरोध करिछि। नंबर 13 डाक्तरों को सुरक्षा पई गठन हेबो कमिटी। कार्य रे जोग देबको केंद्र सरकार को अपील। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन बा आईएमए रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन अर्थात आरडीए समेत अनेक संगठन कार्यबन आंदोलन डाकरा देइछंती। सारा देश में चिकित्सा सेवा बाधाप्राप्त होइछि। चिकित्सा न पाई रोगी अवस्था दयनीय हो पड़ी। तेबे यही प्रसंग को अति गुरुतर सह नहीं केंद्र सरकार। यथाशीघ्र कार्य को फेरिबा को डाक्तर मानक निवेदन करिसेंती। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे सरकारी डाक्तरखाना एफओआरडीए आईएमए एवं आरडीए द्वारा दाबी को दृष्टि रे रखी स्वास्थ्य मंत्रालय सेमानक सुरक्षा निश्चित करने को एक कमिटी गठन करुछि। एही कमिटी स्वास्थ्य कर्मचारी सुरक्षा संबंध में समस्त संभाव्य पदक्षेप गुड़िकर विवरणी प्रदान करिवे। नंबर 14 29 जन ओएस बदली आईन मंत्री ओएसडी हेले रोशन शतपथी। राज्य सरकार काली 29 जन ओएस ऑफिसर बदली करिसेंती। भुवनेश्वर महानगर निगम डेपुटी कमिश्नर ओएस रोशन शतपथी को राज्य आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ओएसडी भाव बदली कर महिला और शिशु विकास विभाग अनुसचिव जन्मेजय साहू को ग्राम्य उन्नयन और पंचायतीराज विभाग मंत्री रवि नायक ओएसडी भाव बदली होइछि। सेहिपरि अन्य ओएस ऑफिसर मानकु विभिन्न स्थान में बीडीओ और तहसीलदार भाव बदली होइछि। नंबर 15 राति अधरे दुर्घटना ट्रक रु खसिला यात्रीवाही और मालवाही ट्रेन। शनिवार राति रे घटिछि दुईटी ट्रेन दुर्घटना। एक यात्रीवाही ट्रेन ट्रक रे पड़िथिबा बड़ पथर रे माड़ होई लाइनच्युत होइथिबा बेले आउ एक मालगाड़ी भी लाइनच्युत होइछि। तेबे एही दुईटी दुर्घटना रे केही मृताहत होई नथिबा सूचना मिलिछि। उत्तर प्रदेश कानपुर रे गतकाली विलंबित राति रे एक ट्रेन दुर्घटना घटिछि। ट्रक रे पड़िथिबा बड़ पथर माड़ हेबारु लाइनच्युत होइछि साबरमती एक्सप्रेस। एही दुर्घटना एते तीव्र थिला जे ट्रेन रो 12टी बगी लाइनच्युत होइछि। मात्र एथिरे केही मृताहत होइथिबार सूचना मिलिनि। सेहिपरि आउ एक दुर्घटना पश्चिमबंगर सिलीगुड़ी रे घटिछि जोठारे इंधन नहीं जाउथिबा एक मालवाही ट्रक को खसी जाइछि। एथिजोगु ट्रक रे ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होइछि। नंबर 16 मिलिला राज्यपाल अनुमति कर्नाटक मुख्यमंत्री विरुद्ध रे रुजु हेबा मामला।
कर्णाटक मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया अड़ुआ बढ़ी। जमी दुर्नीति अभियोग उपरे मामला रुजु करने को अनुमति देइछंती राज्यपाल थावरचंद गेहलोत। जड़े आरटीआई कार्यकर्ता अनुरोध क्रमे यह अनुमति देइछंती राज्यपाल। सूचना अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम मैसूर सहरांचल विकास प्राधिकरण जमी आवंटन में घोटाला अभियोग करी मुख्यमंत्री द्वारस्थ होइथिले। एही दुर्नीति उपरे मामला रुजु करी मुख्यमंत्री विरुद्ध में तदंत करने को से राज्यपाल को अनुरोध करथिले। नंबर 17 भारत अणाजिव 26/11 हमलार षड्यंत्रकारी तहूर राणा। 26/11 मुंबई आतंकवादी आक्रमण में संपृक्त थिबा अभियुक्त तहूर राणा को बड़ झटका देइछंती। प्रत्यर्पण चुक्ति अनुसार तहूर को भारत को पठाई पारिबो बोली कहिछंती अमेरिका कोर्ट। अगस्ट 15 रे यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर 9th सर्किट प्रदान करिथिबा निष्पत्ति रे कहिछंती जे चुक्तिनामा राणा को प्रत्यर्पण को अनुमति देउछि। नंबर 18 बीजेपी रे जोग देवा नहीं चर्चा विषय मुह खोलिले चंपाई सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चार वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी रो जोग देवा नहीं चर्चा होउथिबा बेले शनिवार एने चंपाई प्रतिक्रिया रखिछंती। गुजब संपर्क रे मु जानी नाही, तेबे मु कुआडे जीवी कोन करिवि से कथा जानी नाही। मु वर्तमान जेउठी अछि सेठी अछि, परे आपनकु ए विषय जणैबी बोली चंपाई सोरेन कहिछंती। नंबर 19 कोलकाता आरजी कर हॉस्पिटल रे पहुंचिला सीबीआई। क्राइम सीन रो हेबो डिजिटल मैपिंग। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे घटिथिबा घटनार टेक्निक तथ्यर पर्दाफाश करिबो सीबीआई। काली आरजी कर मेडिकल कॉलेज रे पहुंची तनघना आरंभ करिछि सीबीआई टीम। तदंतकारी संस्था घटना दिनर पूरा सीन रो डिजिटल मैपिंग करिबो बोली जणा पड़िछि। वर्तमान सुधा सीसीटीवी फुटेज आधार रे करा जाइथिबा तदंतरु जणा पडुछि जे अभियुक्त संजय रॉय घटना दिन अर्थात गुरुवार राति प्राय 11टा समय रे डाक्तरखाना को आसीथिला। डाक्तरखाना रे पहुंचिबा परे से प्राय 30 मिनिट रहिबा परे सेठारु चली जाइथिला। एहा परे से पुणी विलंबित राति प्राय 3:45 रु 3:50 मध्य रे डाक्तरखाना को आसीथिला। एही समय रे से सेमिनार रूम को जाइथिला एवं 35 मिनिट परे सेठारु चली जाइथिला। नंबर 20 अगस्ट 22 रे हेबो जेपीसी रो प्रथम बैठक। वाकफ उपरे चर्चा। वाकफ संशोधन विधेयक 2024 समीक्षा करुथबो मिलित संसदीय कमिटी जेपीसी रो प्रथम बैठक अगस्ट 22 तारिख रे हेबो। एही बैठक रे संख्यालघु व्यापार मंत्रालय प्रस्तावित परिवर्तन संपर्क रे 31 संसदीय पैनल को विस्तृत सूचना देबे। बीजेपी लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल वाकफ संशोधन विधेयक जांच पई गठित जेपीसी रो अध्यक्ष मनोनीत होइछंती। नंबर 21 मंत्रालय मानकरे लैटरल एंट्री रे पूरण करा जिवो सचिव और निर्देशकक 45 पदवी। मगागला आवेदन। केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालय रे खाली पड़िथिबा जुग्म सचिव निर्देशक और उपसचिव 45 टी पदवी पूरण करिवे। साधारणतः एपरी पदवी रे आईएएस आईपीएस और आईएफएस एवं ग्रुप ए अधिकारी माने काम करिथांती। तेबे यूपीएससी शनिवार 45 पदवी पूरण निमंते विज्ञापन जारी करिसंती। एथिरे 10 टी जुग्म सचिव 35 निर्देशक और उपसचिव पद रहिछि। एही पदवी गुडी को चुक्ति आधार रे लैटरल एंट्री माध्यम रे पूरण करा जिवो। विज्ञापन अनुसार भारत सरकार जुग्म सचिव निर्देशक और उपसचिव स्तरर अधिकारी को लैटरल एंट्री माध्यम रे नियुक्ति करने को चाहूछंती। एही पदवी गुडी को निमंते वेबसाइट द्वारा सेप्टेम्बर 17 तारिख पर्यंत आवेदन करि हेबो। नंबर 22 बांग्लादेश हिंसा 600 मृत। यूएन रिपोर्ट रे बड़ दाबी। बांग्लादेश रे शेख हसीना सरकार गादीच्युत होगा पर भी हिंसा थमिबार ना धरू नाही। बांग्लादेश हिंसा रे प्राय 650 रु अधिक लोक प्राण हरैछंती। जातिसंघर सुरक्षा परिषद रे यह दाबी होईछि। जातिसंघ रिपोर्ट रे हत्या मनमानी गिरफ्तारी एवं अत्याचार मामलार जांच पई परामर्श देइछि। यूएन रिपोर्ट अनुसार जुलाई 16 तारिख रु अगस्त 11 तारिख मध्य रे चाकरी संरक्षण को नहीं बांग्लादेश रे विक्षोभ प्रदर्शन होइथिला। परे एही हिंसार रूप धारण करिथिला। एही समय भितर प्राय 600 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइछि। नंबर 23 कोटियारे पुणी अनुप्रवेश। आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम कला आंध्र। कोटियारे पुणी अनुप्रवेश कला आंध्र। नेरेडीवालासा ग्राम रे अनुप्रवेश करी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम करिछि। केंद्रर आर्थिक सेवा विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास द्वारा म्यावडीपल्ली द्वारा उक्त कार्यक्रमटी आयोजन करा जाइछि। एही कार्यक्रम रे विभिन्न ग्रामवासी को एकत्रित करा जाइथिला। किछि अधिकारी माने मध्य कार्यक्रम रे योगदान देइथिले। अधिकारी माने आदिवासी माने आदाय टंका को किभଳି सठिक भाबे उपयोग करि परिबे से नै सचेतन करिथिबा नै जणा पड़िछि। नंबर 24 दक्षिण लेबानन उपरे इस्राएल रो बड़ आक्रमण। इस्राएल सेना दक्षिण लेबानन रे बड़ धरणर आक्रमण करिछि। काली सकाळे इस्राएल पक्षरु ए आक्रमण करा जाइथिबा कुहा जाउछि।
ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣ ସିରିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆହତଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଲେବାନନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଭାରତ ଫେରିଲେ ରେସଲର ଭିନେସ୍ ଫୋଗଟ୍। ପ୍ୟାରିସରୁ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେସଲର ଭିନେସ୍ ଫୋଗଟ୍। ସେ 17 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନାଚ ଗୀତ ସହ ଭିନେସ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଭିନେସ୍ ହୁଏତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କୌଣସି ପଦକ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ପରି ଭିନେସ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।